آج تم نے سوال کیوں کیا؟ جب نہیں جبرائیل نہیں، پوری جبرائیلیت پلٹ کر آواز دے مولانا تم نے سمجھا نہیں آیت تطہیر کی عظمت کو؟ ارے عظمت تطہیر اتنی بڑی ہے کہ ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ اس آیت تطہیر کو بھیجنے کے لیے مجھ سے بڑا کوئی فرشتہ نہ حل کر دے، تو ہی بھیجے مل کر محمد والے محمد آپ نے آج کی بات سنی؟ آپ جب فرش پر جبرائیل اترے تو اسی حدیث قصہ میں ایک جملہ ملتا ہے، رسول کی بارگاہ میں آئے، فاطمہ کے گھر میں آئے، چادر قصہ سے باہر کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں، یا رسول اللہ السلام علیکم، یا رسول اللہ اتاذنوا لی، اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے اجازت دیں گے؟ عجیب مرحلہ ہے۔ مثلا اگر کوئی مومن مجھے دعوت دے انشاءاللہ سنڈے کو کہ ہمارے ساتھ کھانے پر آئیے گا، اور میں اسے فون کر کے پوچھوں کیا آپ کی اجازت ہے؟ عجیب آدمی مولانا، اس کو اتنا اہتمام کیا، اتنا کھانا بنایا، اتنی زحمت کی دوستوں کو بلایا، پھر فون کر کے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو عجیب منزل ہے۔ میں تمہیں ایک فکر دے کر جا رہا ہوں کہ جب جبرائیل آئے نبی کی بارگاہ میں آواز دی اتاذنوا لی، اے اللہ کے رسول کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر قصہ میں داخل ہو جاؤں؟ اے جبرائیل کیا ہوا؟ ارے آپ تو سرکاری کام سے آئے ہیں، اللہ نے اجازت لے کر آئے ہیں، اور رسول سے اجازت لینے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمیشہ تم کیا اجازت لیتے ہو؟ عجیب و عجب نہیں؟ جبرائیل پلٹ کر آواز دیں کہ مولانا آج میں اپنے رسول سے اجازت نہیں لے رہا، بلکہ میں اجازت تو اس بی بی سے لے رہا ہوں کہ جس کی چادر میں اعلان تطہیر ہونے والا ہے۔ اور عزیزوں یہ عظمت فاطمہ تھی، لیکن سنو عظمت فاطمہ کے دروازے کی اہمیت کیا ہے، فاطمہ کے خود گھر کی اہمیت کیا ہے، فاطمہ کے گھر کی اہمیت یہ ہے، تاریخ کہتی ہے فاطمہ کے دروازے کی اہمیت یہ ہے، تاریخ کہتی کہ جب یہ آیت تطہیر اتر چکی جبرائیل واپس چلے گئے، یہ عظمت فاطمہ تھی۔ مسلسل 6 ماہ تک جب تک رسول زندہ رہا، مسلسل 6 ماہ تک رسول اللہ نماز فجر کے بعد فاطمہ کے دروازے پر آتے، آواز دیتے السلام علیکہ یا بنتی و یا بیداتی، پھر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے رسول اللہ مسلسل 6 ماہ تک کیا ضرورت تھی در فاطمہ پر آ کر آیت تطہیر پڑھنے کی؟ عجیب و عجب نہیں؟ رسول اللہ آواز دیں اے مولانا ہم اس لیے بار بار آ کر عظمت فاطمہ کو بیان کر رہے ہیں اور آیت تطہیر کو پڑھ رہے ہیں تاکہ دنیا والوں کو اور مدینے والوں کو میں رسول بتا سکوں کہ اہل بیت کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ کے گھر والے ہیں۔ ہم عزیزوں عظمت فاطمہ وہ ہے، در فاطمہ دروازے فاطمہ کی اہمیت یہ ہے کہ جہاں اگر بیزر آتا ہے تو وہ بوزر بن جاتا ہے، اگر سلمان آتا ہے تو وہ فقر سلیمان بن جاتا ہے۔ ارے یہ فاطمہ کی دروازے کی عظمت ہے کہ جس کے دروازے کی دہلیز پر آسمان سے ستارہ گر کے اس کے سجدہ کر رہا ہے، اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ ارے عزیزوں آخری روایت پر آپ کی ذمہ کو تمام کر رہا ہوں، مدینے کی روایت ہے، مدینے کا جملہ ہے، تاریخ کہتی ہے کہ ابن مسعود جو برادران اہل سنت کا بہت بڑا محدث، بہت بڑا عالم، بہت بڑا مفتی، بہت بڑا راوی گزرا ہے ابن مسعود، اور یہ اللہ کا رسول کا صحابی بھی تھا، لیکن اہل بیت کی محبت اس کے دل میں کم تھی، اس لیے کہ ہر آدمی کو دنیا والے صحابی سمجھتے ہیں، ہم صحابی اسے سمجھتے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں رکھتا ہو اور اس کا اظہار کرتا ہو۔ تو ابن مسعود ایک مرتبہ مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، اللہ کا رسول کا یہ صحابی ہے، سامنے سے بی بی فضہ اما فضہ آ رہی، گلی کی چوڑائی کم تھی، ایک مرتبہ جب ان کا آمنا سامنا ہوا، ایک مرتبہ ابن مسعود نے فضہ کو دیکھا، مسکرا کر طنز کیا، اے فضہ تو بڑی خوش نصیب ہے کہ تو اللہ کے رسول کے گھر میں رہتی ہے، فاطمہ کے گھر میں رہتی ہے، تو نے فاطمہ کے گھر میں رہ کر رسول کی خدمت کی، حسن کی خدمت کی، حسین کی خدمت کی، علی کی خدمت کی، فاطمہ کی خدمت کی، یقیناً اے فضہ تو جنت میں جائے گی۔ اور عزیزوں ابن مسعود نے دعا دی فضہ کو، اے فضہ تو نے فاطمہ کے گھر میں رہ کر
रसूल की खिदमत की, अली की खिदमत की, फातिमा की खिदमत की, हसन की खिदमत की, हुसैन की खिदमत की। मेरा दिल कहता है कि तू जन्नत में जाएगी। और अजीजों, जब साहिब मार्फत कनीज़े फिजा ने सुना एक मर्तबा आलिम जलाल में ये आलिम मुअज़्ज़मा आवाज देती है, और इब्ने मसूद अल्लाह तुझ पर लानत करे, अरे तू कैसा सहाबी रसूल है, अजमत फातिमा को पहचानता नहीं, तू ये कहता है कि मैं जन्नत में जाऊंगी। अरे इतना पता कि फातिमा का घर किसी जन्नत से कम है। जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, मुश्किल को सबकी हल करो, मुश्किल कुसाली। ये अजमत फातिमा है, मैं जन्नत में जाऊंगी और दर फातिमा किसी जन्नत से कम नहीं है। इनके दरवाजे पर जो दीवाने आते हैं वो जन्नत बांटते हैं। कैसी बात कर रहे हैं, मैं जन्नत में जाऊंगी, मैं तो जन्नत में रहती हूँ, मैं तो जन्नत में घर इलाज कर दूं, तकसीम कर दूं। और अजीजों, ये अजमत फातिमा का दरवाजे की अजमत है। तारीख कहती है, रिवायत कहती है कि जब भी अल्लाह का रसूल मदीने से जाने लगता था, देखो आगाज रसूलत क्या है, जब भी रसूल अल्लाह मदीने से जाते थे सबसे पहले फातिमा के दरवाजे पर आते थे, आकर तकरीबात करते थे। जब बेटी निकलती थी तो बढ़कर इस बेटी के हाथों को चूमते थे, आवाज देते थे, फातिमा अंते उम्मे अबीहा। बड़े बाप मुझे नजर आ रहे हैं जिनकी बेटियां हैं, और यकीनन हर बाप अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करते हैं और बेटियां अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती हैं। पर्दे में मेरी बहन बेटियां बैठी हुई, मेरी माएँ बैठी हुई, हर यह औरत अमूना जानती कि बाप और बेटी का रिश्ता कितना नाजुक होता है, कितनी बाप और बेटी में मोहब्बत होती है कि बाप को जरा सा दर्द होता है, कोई समझे या ना समझे, बेटी अपने बाप के दर्द पर तड़प जाती है। ऐ अजीजों, कितनी मोहब्बत थी। और रसूल को, ऐ मेरी बहनों जो पर्देदार है, तुम्हारे पर्दे को अल्लाह सलामत रखे। और अजीजों, इतनी मोहब्बत थी कि जब रसूल जाने लगते थे सबसे पहले फातिमा के दरवाजे पर आते, जब कोई बाप करते आवाज देते, या फातिमा तो अंते उम्मे अबीहा, ऐ फातिमा तू अपने बाप की माँ है, अताज़नुली, ऐ फातिमा क्या बाप को इजाजत है कि मैं मदीने से बाहर चला जाऊं? हाँ अजीजों, फातिमा इजाजत देती, रसूल सफर पर चले जाते। आपने सुना, फातिमा अंते उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। और रिवायत जुमले रावी कहते हैं हमने देखा कि जब रसूल सफर से वापस आते कहीं और नहीं जाते, सबसे पहले फातिमा के दरवाजे पर आते, दक्कुल बात करते, और जब बेटी बाहर निकलती तो हाथ नहीं चूमते थे। जब आने के बाद आते थे तो फातिमा की पेशानी पर बोसा देते, आवाज देते, या फातिमा ते अंती कुरातिल ऐन, ऐ फातिमा तू अपने बाप की आंखों की ठंडक है। अल्लाह अल्लाह, आगाज भी फातिमा और अंजाम भी फातिमा। इतनी मोहब्बत थी और रसूल को अपनी बेटी से। और अजीजों, तुमने सुना मदीने में घर है, नबी की बेटी का बाप आ रहा है, इस तरह मोहब्बत करना है। खुदा की कसम, मैंने तारीख में पढ़ा है कि कूफे में एक घर था, जब बाप उस घर में आता तो अपनी बेटी ज़ैनब को बुलाता करीब, और आकर जब मोहब्बत मंजिल कमाल पर पहुंचती कहता, फातिमा ऐ ज़ैनब जरा करीब आओ। जब बेटी करीब आती कहा, ऐसे नहीं, ऐ ज़ैनब जरा करीब आओ। जब ज़ैनब करीब आती ना, एक मर्तबा कहते, ऐ ज़ैनब जरा चादर हटाओ अपने बाजुओं से। अरे अली की बेटी जब चादर हटाती तो अली अपने लबों को ज़ैनब के हाथों में चूमते। बेटी तड़प कर पूछती, बाबा ये क्या है? कहा, ज़ैनब हम तेरे हाथों को इसलिए चूमा करते हैं कि मेरी निगाहें देख रही है, इन हाथों में रसद बंधेगी। और ये तीनों मैंने अपने चंद दोस्तों से वादा किया था कि आज 5 मुहर्रम में औनो मोहम्मद के जनाजे उठने, लाशें उठने, अब मेरी गैरत गवारा नहीं रहती कि शाम से आने वाली एक मां को उसके बच्चों को फुर्सत देना। मैं आज के बाद से मिंबर पे बैठकर मसाइल नहीं पढ़ूंगा, मैं मिंबर से खड़े होकर मसाइल पढ़ूंगा, इसलिए कि अली की बेटी तुमसे फुर्सत लेने आ रही है।
की कसम ये रिवायत के जुमले हैं कि जब अली की बेटी आई है ना इस मंजिल पर, इस अंदाज में आई है, खुदा की कसम तारीख कहती है कि जब अली की बेटी ने सुना ना कि मेरे हाथों में रस्म बंधेगी, तलब को पूछती है बाबा इतना बताओ कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसके हाथों पर रस्म कौन बांधेगा? और यदीदों इसका जवाब मैं अब्बास के जरिए 8 मुहर्रम को दूंगा। तुमने गिरिया किया। और यदीदों जब यही बहन करबला के मैदान में आती है, भाई आज इस माँ को तुम्हें 2 छोटे छोटे बच्चों का पुरसा देना है। एक मर्तबा जब शब आशूर आती है, रात का अंधेरा होता है, फिजा से कहते हैं फिजा जाओ मेरे औनो मोहम्मद को बुलाओ। औनो मोहम्मद आते हैं, माँ अपने बच्चों का आवाज देती है, अरे औनो मोहम्मद याद रखना कल रोज़े कुर्बानी है, खबरदार अगर जरा सी कोताही की याद रखना मैं ज़ैनब तुम्हें दूध ना बख्शूंगी। अरे रोज़े महशर तुम मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे। और अजीजों जब सुबह आशूर हुई तुम गिला कर रहे हो, अरे बीबी तुम्हें परेशान ना हो इसलिए कि बड़े चाहने वाले जवान और मोहम्मद का लाशा उठाने आए हैं। और अजीजों खुदा की कसम एक मर्तबा जब रोज़े आशूर आई ना, एक मर्तबा ज़ैनब ने अपने बच्चों को बुलाया, अपने हाथों से लिबास बनाया, अपने हाथों से कंघी की, और एक मर्तबा एक हाथ में औन का हाथ लिया, दूसरे हाथ में मोहम्मद का हाथ लिया और चली भाई के पास आई। कहने की आए भैया हुसैन क्या मेरे बच्चों को मरने की इजाजत है? और यदीदों इतना सुनना था। एक मर्तबा हुसैन ने सर को झुका दिया, कहा पहना ज़ैनब कैसी बात कर रही हो? अरे ये औनो मोहम्मद मेरे पास अब्दुल्ला की अमानत है, मैं कैसे इन्हें मरने की इजाजत दे दूं? तो इतना सुनना था। एक मर्तबा बीबी तड़प कर कहती है, अरे भैया कैसी बातें करते हो? जब रोज़े महशर अम्मा ज़ैनब पूछेंगी, अरे ज़ैनब इतना बताओ तुझे औनो मोहम्मद ज्यादा प्यारे थे या तेरा हुसैन? और जब माँ का नाम सुना हुसैन गिरिया करने लगे। एक मर्तबा बीबी ने तड़प कर कहा, अरे हुसैन अब्दुल्ला ने कहा था, जब हम मदीने से रुखसत होने लगे अब्दुल्ला ने कहा था, अरे ज़ैनब याद रखना कि जब मेरे मौला हुसैन पर मुश्किल वक्त आ जाए तो और तो मेरी जानिब से, मोहम्मद को अपनी जानिब से मेरे मौला हुसैन का सदका कर देना। और ये तो हुज्जत तमाम हुई, शहजादों को जंग की इजाजत मिली। अरे जाफर तैयार के पोते हैदर करनाल के नवासे जब मैदान जंग में आए, ऐसी तलवारें चलाई इन शहजादों ने कि दुश्मन की फौजें अलमान अल हफीज कहते हुए पीछे हटने लगी। शौके जज्बे जहाज में ये मजलूम बच्चे, 3 दिन के भूखे प्यासे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक मर्तबा इब्ने साद ने आवाज दी, अरे ऐसे नहीं सब मिलकर हमला करो। 4000 तीरंदाजी करते हैं। कुछ देर बाद छोटा भाई तड़प कर एक मर्तबा ज़मीन करबला पर गिरा, आवाज देता है, ए मेरे भाई मेरी मदद करो। बड़े भाई ने जब ये मंशा सुना ना, एक मर्तबा कहता है मेरे माँ जाए, मेरे लाल, मेरे भाई परेशान ना हो, मैं भी आ रहा हूँ। कुछ देर बाद जब बड़ा भाई खाके करबला पर गिरा, क्या देखा छोटा भाई खाको खून में एड़ियां रगड़ रहा है। आवाज दी, अस्सलाम अलैकुम या अरे अजीजों हुसैन मामू है ना औनो मोहम्मद के, तड़प कर आगे बढ़े, आवाज देते हैं, अब्बास औन का लाशा तुम उठाओ, मोहम्मद का लाशा मैं उठाऊं। अभी अब्बास भी है, अभी अकबर भी है, कासिम भी है। और अजीजों एक अजीब रिवायत में पढ़ना चाह रहा हूँ। बीबियां कहती है कि जब मक्तल से हुसैन कोई लाशा लेकर आते थे, ज़ैनब सबसे आगे आगे होती थी। तुम इतना तो जानते हो ना कि जब भी कोई लाशा आता तो शहजादी ज़ैनब सबसे आगे होती। अरे जब हुसैन अली अकबर के लाशे पर पहुंचा है, ज़ैनब हुसैन से पहले अकबर के लाशे पर पहुंच गई थी। हाँ तुमने गिरिया किया, खुदा की कसम यही हक है गिरिया करने का। अरे शहजादी ज़ैनब शाम से अपना रोजा छोड़कर तुमसे अपने बच्चों को पुरसा लेने आई है। ऐ जवानों ऐसा ही वादन करना, आज लाशा उठ रहे औनो मोहम्मद के, हाँ तुम गिरिया कर रहे हो। अरे दीदों खुदा की कसम माफ कर देना, अगर देर हो जाए, थोड़ी देर हो जाए मुझे माफ कर देना। अरे दीदों बीबियां परेशान है। जब औनो मोहम्मद के जनाजे खयाम हुसैनी में आए,
एक मर्तबा हुसैन खड़ा कर पूछते हैं, मेरी बहन ज़ैनब मुझे नजर नहीं आ रही। और ये तो शैतानियों ने इधर देखा उधर देखा, बीबियां परेशान हैं, सैयद सज्जाद परेशान है, अब्बास परेशान है, मेरी बहन ज़ैनब कहाँ है। एक मर्तबा फिजा आवाज देती है, ज़ैनब अपने खैमे में हालत सजदा में है, सजदा में। अरे समझे बंदगी किसे कहते हैं? हुसैन आए, क्या सुना? ज़ैनब आवाज दे रही है, माबूद तेरा शोर, तूने ज़ैनब की कुर्बानी को कबूल कर लिया, माँ ज़हरा के सामने ज़ैनब को सरगुरू कर लिया। आदमी तो खुदा की कसम मैं बड़ा परेशान था जब मैंने ये जुमला पढ़ा ना, कि ये कैसी माँ है जो अपने जवान बच्चों पर मातम नहीं करती, अपने बच्चों के लाशों को देख रही है। औनो मोहम्मद के लाशें ज़ैनब की निगाहों के सामने पड़े हैं, ज़ैनब रो नहीं रही, ज़ैनब ने मातम नहीं किया। मैं परेशान हूँ, ये कैसी माँ है जो अपने बच्चों का मातम नहीं कर रही। और यदि तो यही नहीं, जब 11 मुहर्रम को लुटा हुआ काफिला जाने लगा, सैयद सज्जाद पर गश्त तारी था, ज़ैनब सलारी काफिला थी। और यदि 11 मुहर्रम की रात जब ये लुटा हुआ काफिला जाने लगा, रावी कहता है मैंने देखा ज़ैनब अब्बास के लाशे पर नहरे फुरात पर गई, इतना रोई कि ज़ैनब को बश आ गया। यही ज़ैनब कासिम के लाशे पर गई, यही ज़ैनब अली के लाशे पर गई। ये ज़ैनब की ज़ैनब कि जिसने हुसैन के जनाजे पर इतना मातम किया कि ज़ैनब को बश आ गया। और रावी कहता है मैंने देखा ज़ैनब ने एक निगाह औनो मोहम्मद के लाशे पर की, एक निगाह मोहम्मद के लाशे पर की और आगे बढ़ गई। और अजीजों यही नहीं, बल्कि जब ये लुटा हुआ काफिला कूफा और शाम के बाजारों से गुजर रहा था, छोटे छोटे सर नोके नेजा पर थे। ज़ैनब अब्बास का मातम भी कर रही है, अकबर का मातम भी कर रही है, लेकिन अपने बच्चों का मातम नहीं किया ज़ैनब ने। और अजीजों यही नहीं, जब 1 साल बाद जब जिंदाने शाम से इस बीबी को आजादी नसीब हुई, अब्बास का सर आया, ज़ैनब आगे बढ़ी, अब्बास के सर को ले लिया। अरे अकबर का सर आया, तड़प कर ज़ैनब आगे बढ़ी, अकबर का सर ले लिया। हुसैन का सर आया, ज़ैनब आगे बढ़ी, हुसैन के सर को लिया, अपने हाथों से हुसैन के मुंह से पट्टी साफ की, खून साफ किया। लेकिन रावी कहता है जब जिंदाने शाम में तो छोटे छोटे सर आए और जब उन्हें लेने वाला कोई आगे नहीं बढ़ा, मुनादी आवाज देता है, अरे क्या इन बच्चों की मां मर गई? बेटो इनका कोई लेने वाला नहीं। अरे हुसैन की बहन ने सुना, तड़प कर आवाज देती है, इतना बताओ मैं अब्बास का मातम करूं, मैं अकबर का मातम करूं, या मैं अपने बच्चों का मातम करूं? हाँ देखो तुमने गिरिया किया ना, आज लाशों उठना है, बड़ी जहमत हो रही है, माफी चाहता हूँ अगर जरा सी देर हो जाए। बीबी बड़ी दूर से आई है, अरे अपनी बीबी को पुरसा देना है। सानिया ज़हरा जवानों तुमसे पुरसा लेने आई है, अब्बास की बहन तुमसे पुरसा लेने आई है। अजीजों जब ये टूटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा है, तारीख कहती 3 दिन तक ज़ैनब अपने नाना के रोजे पर रही। अब्बास का पुरसा दिया, हुसैन का पुरसा दिया, असगर का पुरसा दिया, कासिम का पुरसा दिया। इतना जुरिया किया ज़ैनब ने नाना रसूल के मज़ार पर, अपने नाना के मज़ार पर आवाज देती है, ऐ नाना मेरा हुसैन मारा गया, ऐ नाना मेरा अकबर मारा गया, ऐ नाना मेरा कासिम मारा गया, ऐ नाना यही नहीं, अरे मेरा 6 माह का बच्चा अली असगर भी मारा गया, ऐ नाना ये नहीं, अरे सफर में इतने ताजियाने पड़े हैं, मैं रात की दादी की मैं आऊंगी, अपने निशान दिखाऊंगी। हाजियों तुम्हें गिरिया किया। और अजीजों पूरी इंसानियत, पूरी तारीख करबला परेशान है। ये कैसी माँ है जिसने अपने बच्चों का पुरसा और रसूल को नहीं दिया, अपने बच्चों का मातम नहीं कर रही। और अजीजों मेरा दिल कहता है कि ज़ैनब सोच रही होगी कि अगर मैं औनो मोहम्मद पर मातम करूंगी, अगर मैं औनो मोहम्मद पर गिरिया करूंगी, तो फिर अली असगर की माँ को कौन संभालेगा? अरे अकबर की माँ को कौन संभालेगा? हाँ अजीजों जब ज़ैनब ने जब सैयद सज्जाद को संभाला और हर एक की अमानतों को वापस कर दिया, आखिरी मंजिल है। और अजीजों ये ज़ैनब एक मर्तबा
अपने घर में वापस आती है, हुसैन का वादा पूरा किया। शरीकतुल हुसैन एक मर्तबा जब घर में आती है, एक मर्तबा आना मोहम्मद के हुजरे में आती है, तो छोटे छोटे बिस्तर देखे, माँ की ममता उमड़ आई, करबला का रुख किया, आवाज देती है, ओए आना मोहम्मद, माँ को माफ कर देना, तुम्हारा वादा न कर सके। अल्लाह या हुसैन सदा की बहन मर गई।